Friends, welcome to YouTube channel Open Secret. I am your friend Ashish Chand. As you are aware, these days we are studying Katha Upanishad. This is our 29th video on the subject. Today we will be covering verse 1-2-22. First chapter, second section, verse number 22. Lord Death has started explaining about the self, the Atma. Nachiketa had asked the question, does it exist? Some say it does, some say it does not. Does it exist after death? And Nachiketa had said, please tell me from your own सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। ये सुनी सुनाई बातें भारत देश में ये कॉमन पार्लेंस के हिसाब से तो मुझे भी बहुत पता है, लेकिन उससे मालूम कुछ पड़ता नहीं। तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये है दोस्तों इसकी बिगनिंग और यमराज ने आत्मा के बारे में बताया है पिछले 5 श्लोकों में। द सेल्फ नॉलेज हैज बीन टोल्ड टू योर नचिकेता इन दीज वर्सेस। Okay friends, let us see this verse first. 1-2-22. अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरम शरीरेषु, bodiless amidst bodies, अनवस्थेषु अवस्थितम, as permanent amidst the impermanent, महांतम विभुम आत्मानम, and as great and all pervasive, मत्वा धीरः न शोचति। The wise man who meditates thus on Atma does not come to grief. बहुत सिंपल 2 वर्ड्स में एक पूरा सब्जेक्ट बता दिया है यमराज ने। दोस्तों, ये सुदूर बैठा हुआ आत्मा, इसके बारे में 5 छोटी वर्सेस में यमराज ने सब बता दिया है। इट इज नॉट ओनली टेलिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ व्हाट इट इज, नॉट ओनली अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इट, but also a method towards reaching it. दोस्तों, इन सांख्य
It is clearly what Vishnu had seen. Srishti was formed. He had to tell to people and he told it. कपिल मुनि के अवतार में विष्णु जी आए थे। योग दर्शन में the how of it was to be sorted out. शेषनाग ब्रह्मलोक में ऊपर सुनते रहते थे ऋषियों मुनियों की बातें कि ये मन की बीमारियां हैं कुछ और बहुत तंग कर रहा है इंसान को पृथ्वी पर। उसका सॉल्यूशन समझ के सीख के महादेव से आए और उसको डिलीवर किया। और दोस्तों ये उसी समय की बात है जो यहाँ पर थे हमारे यहाँ पे पृथ्वी पर, पीपल हु फॉलोड वैदिक सिस्टम्स। उन्होंने ये उपनिषद लिखा। इसमें फिर क्वालिटेटिवली भी बता रहे हैं और मेथड भी बता रहे हैं दोस्तों। इट इज इन ए स्टोरी फॉर्म। ये एब्सोल्यूट रियलिटी, ये सेल्फ, आपका आत्म तत्व, ये आत्मा, ये ट्रुथ, इसके बारे में इतना क्लियर सबसे पहले कठोपनिषद में ही मिलता है दोस्तों हमको। The intelligent self is neither born nor it die. It does not originate from anything, nor does anything originate from it. It is birthless, eternal, undecaying, and it is ancient. It is not killed even when the body is killed. If the killer thinks that he kills, and if the killed thinks that he is killed, both of them do not know the truth. It does not kill, nor is it killed. The self is subtler than the subtle, greater than the great. The self of every living creature is lodged in the cave of the heart. A desireless man, free from willing and wishing, becomes free from sorrow and beholds, through the grace of a tranquil mind and calm senses, the glory and majesty of the inner self. When sitting, it travels far away. When sleeping, it goes everywhere. That God who rejoices and rejoices not, who but only Nachiketas and Yamas are able to comprehend. ऐसा है दोस्तों ये सेल्फ, और ये सेल्फ नॉलेज दिया गया बाई none other than the Lord Death himself. Now in this verse he is telling a very deep fact. The wise man who knows the Atma as bodiless, seated firmly in perishable bodies, great and all-pervading, does never grieve. दोस्तों 20वें श्लोक में freedom from sorrow was said to be attained simply through the धातु प्रसाद। और ये धातु प्रसाद क्या था
सीरेनिटी ऑफ वंस माइंड। और इस वर्स में द सेम and freedom from grief is said to be attained through the practice of meditation. मनन क्या करना है आपको? This clearly equates the two, giving us the truth. The essence of meditation is serenity of mind, and expressed another way, you can say that only with a serene mind is it possible to really meditate. इसके बाद ही दोस्तों ये जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है ना, ये समझ में आती है. Then alone can one have single pointed focus on the self. दोस्तों, this source of all pains and agonies, disease and death, despairs and dejections, hopes and desires that befall us. The source of all this is only our wrong understanding that we are the body, mind, intellect, equipment. ये है दोस्तों बेसिक कारण. और ऐसे ही we fail to understand that there is no other greater truth in us at all. So the idea that is explained in this mantra is that when in the maturity of discrimination an involved intellect and mind like that of Nachiketa come to inquire and know, seek and discover for himself the Atma Tattva within. Such a saintly one at the peak of evolution, dwelling in the realm of perfection, comes to identify himself permanently as that truth principle. And therefore, naturally, he will know no pain and no limitation. ये है दोस्तों ये मंत्र. All that man has to do to become God is to renounce totally his egocentric vanity and the satanic murmurings of his own impure mind of uncontrolled devilry. Detached from the false, attach yourself to the truth. Therein lies the true redemption and the successes and all achievements. यमराज यह दिखलाते हैं कि उस आत्मा के ज्ञान से शोक का अंत हो जाता है. इस श्लोक में क्या कहते हैं? जो शरीरों में शरीर रहित तथा अनित्यों में नित्य रूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता. आत्मा अपने स्वरूप से आकाश के समान है दोस्तों. ये तो दोस्तों अब हमको समझ में आ ही जाता है. देव, पितृ और मनुष्य आदि
शरीरों में अशरीरी के समान है। अनवस्थित मतलब अवस्थिति रहित, यानी अनित्यों में अवस्थित। नित्य मतलब अविकारी है। नित्य है तो इसमें विकार कैसे होगा दोस्तों? और विकार है तो फिर कुछ तो पहले स्टेज रही होगी, तो फिर वो नित्य कैसे हो सकती है? और महान है, ये दोस्तों समझना बहुत जरूरी है। किस से महान है? जो महतत्व में इतर की अपेक्षा होने की शंका करके कहते हैं, उस विभु अर्थात व्यापक आत्मा को जानकर। दोस्तों यहाँ पे आत्मा शब्द अपने से ब्रह्म की अभिन्नता दिखाने के लिए किया गया है, क्योंकि आत्मा शब्द प्रत्यगात्मक विषय में ही मुख्य है। ऐसे उस आत्मा को यही मैं हूं ऐसा जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार आत्मवेत्ता में शोक बन ही नहीं सकता। दोस्तों ये आत्मा जो है ना, बहुत ही इंडिविजुअल और पर्सनल एंड फॉर्म है आपका, और जो ब्राह्मण है ये थोड़ा कलेक्टिव है दोस्तों। इस चीज का भेद दिखाया है यहाँ पे धर्मराज ने। एक एक शब्द एक एक मीनिंग को कैरी करता है दोस्तों, भारत की भाषा में, भारतीय शास्त्र में। द यूज ऑफ द वर्ड आत्मा to refer to the reality is significant, because we are talking of the reality with respect to the individual body, for which the word Atma is more appropriate than Brahman. Brahman is the collective, Atma is the individual. Now it appears so simple. एक ही हैं, लेकिन अलग अलग इनके रूप हैं। फ्रेंड्स, ये जो वर्स है ना, इट इज लाइक ए महावाक्य। अहम ब्रह्मा अस्मि तत् त्वम असि। दोस्तों हमने इस पे एक पूरा वीडियो भी किया था, ये तो अब आपको समझ में आता होगा। बिकॉज दिस वर्स कंटेन्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द ब्राह्मण जीवा आइडेंटिटी। ऑल द कीवर्ड्स आर प्लेस्ड इन द सेम केस। ये अशरीरम, अस्थितम, महानतम, आत्मानम, ये सारे शब्द they all refer to the same reality. Lord is also explaining how do we actually go about meditation. मेथड जो दिया गया है, 3 टेक्निक बताए गए हैं। पहला तो है ये अशरीरम, विदाउट अ बॉडी। अगर आप अपने आप को यही समझाएं कि जो सेल्फ है आपका, ये विदाउट बॉडी है, तो आधी चीज़ें आपको समझ में आने लग पड़ती हैं।
The association of the self to a body is the result of it being reflected in the intellect of the individual being. Without interference from the intellect, it has no such association to a body. It is bodiless. It is the same self in all bodies. एक ही है दोस्तों, जितनी भी शरीर है यहाँ पे असंख्य, सब में ये जो सेल्फ है, ये जो आत्मा है, ये एक ही है. There are no boundaries to this self. इसलिए जो हमारा मनन है ना दोस्तों, सब कुछ जान लेने के बाद गुरु ने बता दिया, जीवन जी लिया, पढ़ लिया, आपने एडल्ट हो गए, सीनियर हो गए, सब कुछ कमा खा लिया, उसके बाद तो जो हमारा मनन है, मेडिटेशन है, शुड बी डायरेक्टेड टू टेक अस बियॉन्ड बॉडी कॉन्शियसनेस. दिस टेक्निक इज टेकन अप फर्दर लेटर इन द टेक्स्ट. बाद में और लेके गए हैं इसको. द सेल्फ इन द बॉडी रिमेन्स द सेल्फ एंड डज नॉट बिकम द बॉडी. इट इज टोटली non-attached to the body. It goes beyond the body. चाहे वो बॉडी किसी राजा की हो, किसी भिखारी की हो, किसी जानवर की हो, पेड़ पौधों की हो. The self is the same pure substratum in all. दोस्तों कभी कभी तो मैं सोचता हूँ ये शब्द आकाश, द स्पेस इन द पॉट, घड़े में, घट में जो आकाश है वही इसके बाहर है. क्या शब्द है दोस्तों ये काश होता है अगर, वहीं से ही इट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट. तो आकाश कहें तो इट बिकम्स डबली अनअंडरस्टूड. आकाश जो काश भी नहीं है, और आकाश कहें तो उसमें डबल टाइम्स ए आ गया. वन मीनिंग कुड बी इट मे कम if you do the meditation, and you should know at the end it is Akash, not even that. ये दोस्तों जस्ट पर्सनल चिंतन की बात बता दी आपको मैंने. सेकंड जो टेक्निक है ये है अवस्थितम, दैट विच इज फिक्स्ड, द परमानेंट. With reference to all the upadhis that are associated with the self is fixed. It is permanent. जबकि जो उपाधियां होती हैं ना इसके साथ में एसोसिएटेड, दे आर अनवस्थेषु. They are not fixed. They are impermanent. यही दोस्तों ट्रिक है. जाना जाता है किसी उपाधि के साथ ही वो उपाधि इम्परमानेंट है, जबकि जो ये जाना गया है, जाना जाना चाहिए, जो फाइनल इंटेलेक्ट से आप जान जाते हो, वो परमानेंट है. प्लीज दोस्तों इस पे मनन कीजिएगा. और उसके बाद जो तीसरा टेक्निक बताया गया है वो है महानतम, वेरी लार्ज, which cannot be locked up into any particular object.
एक ग्लास में बर्फ आइस क्यूब्स रख दो, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे दोस्तों वो। अगर ये बर्फ पानी हो जाए तो नेचुरल है कि जो भी स्पेस आइस क्यूब्स ने ऑक्यूपाई की थी, पानी उससे भी ज़्यादा फाइनली, होलसमली स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। बर्फ में तो गैप्स हो सकते हैं, रहेंगे ही। सॉलिड टू लिक्विड हुए हो अभी आप, और जब ये पानी भाप बने अगर, तो नेचुरली स्पेस को और ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेगा। पानी रहते हुए जो जो गैप्स रहे थे उनको भी फुलफिल कर लेगी ये स्टीम। यही है दोस्तों एसेंस वाली बात, स्पिरिट वाली बात, स्पिरिचुअल होने वाली बात, स्टीम से भी ऊपर वाली बात। स्टीम स्पिरिचुअल के ऊपर हमारे यहाँ पर ज्ञान आता है, शरीर आता है पूरा का पूरा कॉस्मिक। 6th हाउस, 4, 5, 6, 4 मेंटल बॉडी, 5 स्पिरिचुअल बॉडी, 6 कॉस्मिक बॉडी। अब आप दोस्तों एसेंस के भी फाइनेस्ट फॉर्म बन गए दोस्तों, और उसके ऊपर फिर है वो निर्वाणिक बॉडी। तो ये महानतम वेरी लार्ज जो टेक्निक है ना, ये बताया गया है, दैट इज टू बी मेडिटेटेड अपॉन। मेडिटेटिंग इन सच ए मैनर वन अटेन्स द सेल्फ। कितनी वीडियोस की हैं दोस्तों ओपन सीक्रेट ने इसके ऊपर, लेकिन सूत्र में पिरोया है इसको धर्मराज ने कठोपनिषद में। The practical result of such meditations is freedom from all sorrow. In addition, there is the serenity of mind as described. ये है दोस्तों ये वर्स। ऐसे लॉर्ड डेथ ने, मैं दोस्तों बार बार यही कहता हूं कि आपके नचिकेता को, जो आपके भीतर बैठा हुआ है, आत्मा के बारे में समझाया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर आपको इस वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे होंगे। प्लीज गिव इट अ लाइक। Please share this video with those contacts whom you love. Please help us in enlarging our viewership. Thank you friends. May God bless us all. दोस्तों मैं फिर से अपने उस बचपन की प्रेयर के साथ इस वीडियो को आराम देता हूं। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। थैंक्स फ्रेंड्स।